Assalamu alaikum. Thank you for the introduction. First of all, thank you so much for inviting. Thank you to the FamilyCon and Ferozans for inviting for this talk. So I'm grateful to be connected to the family physicians for this talk and looking forward to contribute all I can to this important topic. ये नहीं चल रहा है अच्छा 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 मेरा ख्याल था कि मुझे एक मूवेबल दे So as we are all thank you thank you Hello. thank you Neji, without further ado, let's begin with the discussion on insulin. So I'll begin with the story of Thompson. This 14-year-old boy was the first patient who was ever treated with insulins. It was around 102 years back. So as the last speaker has mentioned that penicillins दुनिया की breakthrough discovery थी जिसके बाद दुनिया change हो गई. Rightly so. This was the second one which changed the world. So insulins. आज हम कहाँ खड़े हैं insulins को लेके और हमारा क्या scope है? How do we, use that important molecule? जिसके ऊपर दो important लोगों को Banting and Best, कि एक Nobel Prize win किया था उन्होंने. So this is the disclaimer for my talk. The topic. So we all know that today we are living in the world which is burdened with a chronic disease known as diabetes. So around 6 million people all around the world are living with diabetes. As of in Pakistan, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है with diabetes. पांचवा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से. So एक और इंटरेस्टिंग फिगर एक सामने आता है 2021 की IDF की आदादो शुमार के मुताबिक जिसमें वो कहता है कि पाकिस्तान नंबर 1 पर है डायबिटीज़ को लेके. ये कैसे? सो अगर आप इसको देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें वो ये है कि ज़्यादातर लोग 20 से 65 साल की उम्र के हैं. सो हाईएस्ट पॉपुलेशन जो हमारी है वो दुनिया के अंदर हाईएस्ट यंगस्टर पॉपुलेशन है. सो इन टर्म्स ऑफ comparative diabetes prevalence in that age group, we come at number 1 in terms of diabetes. So around 30 million people इस वक्त diabetes के साथ रह रहे हैं, which are projected to double in 2045. लेकिन उससे ज़्यादा अलार्मिंग क्या है? उससे ज़्यादा अलार्मिंग ये है कि अराउंड 26% वो लोग भी हैं जो अभी तक डायग्नोज नहीं हुए डायबिटीज़ के साथ. एंड मे बी एक्यूमुलेटिव अगर प्रेवलेंस आप निकालें तो मे बी अराउंड 50%. सो लेट्स सी. लेकिन नॉट जस्ट दिस कि हम सबसे ज़्यादा शुगर से मुतासर हैं, सबसे ज़्यादा अमवात जो यंग डेथ्स हैं विद डायबिटीज़ दे occur in our country. We are the fourth highest country with the deaths under the age of 60, so which is around 30%, right? ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं. What is diabetes means? Diabetes means diabetes and mellitus. Like it's like a honey means siphon of honey. So है क्या ये disease? Basically it's like an octopus. किसी ने ऑक्टोपस देखा है in real? So it's an enormous creature, comes in different sizes, but उसकी खासियत क्या है कि 8 टांगें हैं उसकी. And diabetes, इसको अगर आप किसी भी जानवर से resemblance दें तो it's like a enormous octopus. So इसकी ये जो 8 टांगें हैं, या आपको they will grab you just like
8 arms of death and they will never release you. वो क्या हैं? So there are 8 defects which occurs pathogenesis के लिहाज से in the muscle जिसमें decreased glucose uptake हो जाता है. Then in the liver जिसमें increased glucose production होना शुरू हो जाती है than the normal people. Brain के अंदर neurotransmitter dysfunction है which leads to decreased sensitization to glycemia. Gut में there is a decrease in creatine effect. Pancreas के अंदर there is increased glucagon secretion. And pancreas में जो second defect है, it lies in the beta cells, which is decreased insulin secretions, which leads to decreased insulin secretion. And there is a defect in adipose tissue as well, जिससे lipolysis increase हो जाएगी और glucose uptake fat cells के अंदर कम हो जाएगा, which is the primary source of insulin resistance, as you all know. So insulin ये as करती क्या है, ये आपके सारे इसका function क्या है? Just, yeah. So insulin एक normal subject के अंदर या normal person के अंदर जिसको diabetes नहीं है, वो कर रही क्या है कि जब खाना जाता है और blood के अंदर glucose बढ़ती है, वो insulin उसको जाके target organs के अंदर लगा देती है. ठीक है, ज़्यादातर target organs जहाँ पे ये insulin जाके लगनी है, these are called muscles. इंसुलिन कहाँ काम करती है? इंसुलिन एक्ट्स एज अ की टू दैट लॉक जो ओपन करता है उस खजाने को जहाँ पे उस तिजोरी को जहाँ पे इंसुलिन ने जाके स्टोर होना है एंड प्लस उस सेल के दरवाजे को जहाँ पे इंसुलिन ने शुगर ने अंदर दाखिल होकर एनर्जी प्रोड्यूस करानी है. अगर ये चाबी नहीं होगी तो इट कैन लीड टू, अगर नहीं होगी तो द सेल विल नॉट बी एबल टू यूज़ दैट एनर्जी सोर्स विच इज़ ग्लूकोज. और अगर रेजिस्टेंस होगी तो भी इसमें इसकी ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगी फॉर द ग्लूकोज टू बी टेकन अप बाय द मसल्स एंड द अदर टिश्यूज़. सो टाइप 2 के अंदर ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट करती हैं, डेफिशिएंसी एज वेल एज रेजिस्टेंस साइमल्टेनियसली. Ever wonder why? है उसका नतीजा क्या है? Consequence of that insulin deficiency plus a resistant combination. So it can lead to our liver to produce more glucose, even at non-fasting states. Or the second effect it can have is कि glucose की जो target tissue है उसके ऊपर वो अपटेक नहीं करेगा, डिक्रीज अपटेक हो जाएगा. सो इन दोनों के नतीजे में द इफेक्ट इज इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज इन द फास्टिंग स्टेट्स एंड बिटवीन मील्स एज वेल. सो एक तो जो खाना जा रहा है उससे जो ग्लूकोज आ रही है वो भी यूटिलाइज नहीं हो रही, प्लस जब खाना नहीं भी खा रहे हैं तब भी ग्लूकोज इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द डिफेक्ट. सो दिस आंसर प्रोबेबली कुड आंसर द क्वेश्चन ऑफ योर पेशेंट्स जब वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो फाके भी करते हैं तो भी शुगर ज़्यादा रहती है. सो जब हम ये इंसुलिन के दो एक्शंस हम देख रहे हैं, एक खाने के साथ आ रहा है और एक फास्टिंग स्टेट में आ रहा है. सो जब हम इंसुलिन से पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो इसी को मिमिक करने की कोशिश करते हैं, इसी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ इंसुलिन को हम मिमिक करने की कोशिश करते हैं, इसकी नकल उतारने की कोशिश करते हैं टू मेक इट मोर इफेक्टिव. सो इंसुलिन so it's okay, I cannot stand on this, I'll fall down. ये जो इंसुलिन हम इनिशिएट क्यों करते हैं इन टाइप 2, यू ऑल नो दिस, टाइप 2 प्रोग्रेसिव है और तकरीबन नियर नॉर्मल ग्लाइसीमिया रखने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है, प्लस मल्टीपल लेवल्स पे डिफेक्ट कॉज कर रहा है. वन ऑफ देम इज़ बीटा सेल, सो इंसुलिन इज ऑलवेज इट. लेट्स लुक एट दी जस्ट डू नॉट टेक माई वर्ड ऑन इट. Let's look at the what the guidelines says. So the latest ACE 2023 guidelines कि अगर आप देखें एल्गोरिदम जो कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना है कि सो any patient with diabetes who has a heart failure, stroke, TIA, CKD, atherosclerotic cardiovascular disease can be started with a combination, single or a combination insulin, regardless कि पहली monotherapy आप metformin देने की ज़रूरत नहीं है, but you can start with mono and then go on to dual actions, triple therapy, and then इसमें जो
जो कि फुट नोट है जो हम अक्सर नहीं पढ़ते हैं, दैट इज़ जब भी A1C मोर देन 10% के साथ पेशेंट आता है या ग्लूकोज लेवल मोर देन 300 के, दिस इज़ इंडिकेशन फॉर इंसुलिन in patients with type 2 diabetes. Sorry. Again, with the टाइप 2 की मैनेजमेंट का जो एल्गोरिदम है, अगर पेशेंट का HbA1c 7.5 से कम है, रिकमेंडेड कि आप मोनोथेरेपी दें। 7.5 से 9 के दरमियान है तो इट्स रिकमेंडेड कि आप डबल या ट्रिपल से स्टार्ट करें। और अगर किसी भी टाइम के ऊपर आपका HbA1c 9 से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है तो आप इंसुलिन को एड ऑन थेरेपी लेंगे अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। 2024 ADA गाइडलाइंस ऑलमोस्ट द सेम, इसमें जो कट ऑफ फॉर स्टार्टिंग इंसुलिन है दैट इज़ 10, दैट इज़ गिवन 10 और मोर देन 300, सेम एज 2023। सो इंसुलिन रिजीम्स हैं क्या जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनको कह रहे हैं कि स्टार्ट करें? यही 4 रिजीम्स हैं जिनसे आप फेमिलियर हैं, राइट? या आप बेजल ओनली देते हैं, या बेजल बोलस देते हैं, या 70-30 प्री मिक्स देते हैं, या फिर बोलस ओनली दे देते हैं। ये कब देते हैं? बेजल जो है का मतलब क्या है कि या NPH आप यूज़ करते हैं जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 13 to 18 आवर्स है, या फिर आप ज़रा लॉन्गर एक्टिंग यूज़ करते हैं जिसका 24 आवर प्लस रिस्पॉन्स हो सकता है, ग्लार्जीन या डीग्लूडैग वगैरह। पेशेंट को अगर बेजल और बोलस देते हैं तो आप ये तकरीबन ये वो फिजियोलॉजिकल रजीम है जिसको आप मिमिक करने की कोशिश करें, ये सबसे ज़्यादा करीब है उस फिजियोलॉजिकल इंसुलिन सिक्रीशन के। सो जब भी आप इंटेंसिफाई करते हैं ट्रीटमेंट रजीम तो बेजल बोलस इज़ वन ऑफ द रजीम्स जो जिस पे आप जा रहे होते हैं। बेजल बोलस क्या है? खाने के साथ भी इंसुलिन देनी है और बेजल भी देनी है। सो दिस इज़ दी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एंड फॉलोड बाय एक NPH आप बेड टाइम पे देंगे, या फिर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग्स दे सकते हैं विद अ मोर फ्लैटर कर्व बेजल इंसुलिन्स। एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे अच्छा जो शुगर का कंट्रोल है वो इस रजीम के साथ मिलेगा। डिसएडवांटेज ये है कि हाइपो के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और पेशेंट को मल्टीपल टाइम इंसुलिन लगानी पड़ सकती है। प्रीमिक्सेस आर अवेलेबल। प्रीमिक्स इंसुलिन कॉम्बिनेशन ऑफ 70-30 के अंदर आ सकती हैं, 50 के अंदर आती हैं, 25-75 के, देर आर मल्टीपल इन द मार्केट। सो करना यही है कि आप इसको BD में दे सकते हैं सुबह शाम खाने के साथ, या फिर आप इसको वंस अ डे लार्जेस्ट मील के साथ दे सकते हैं, या इवन ईच मील थ्राइस अ डे तक दे सकते हैं। सिर्फ बोलस इंसुलिन भी बाज़ दफ़ा यूज़ होती है। हाईएस्ट जो भी आपका बड़ा खाना है उसको अगर आप कवर करना चाहें तो यू कैन यूज़ दैट रजीम एज वेल। सो व्हेन यू इंटेंसिफाई इंसुलिन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है? जैसे कि डॉक्टर अब्दुल रहमान वाज टॉकिंग अबाउट कि पर्सनलाइजेशन ऑफ इंसुलिन। सो दिस इज़ वन क्रॉनिक डिजीज़ जहाँ पे आपके 2 पेशेंट एक जैसे नहीं होंगे। सो यू हैव टू व्हेन द की टू सक्सेस फॉर एनी रजीम इज़ कि आप उसे पर्सनलाइज कर दें अकॉर्डिंग टू दैट पेशेंट, अकॉर्डिंग टू दैट पेशेंट नीड्स। जिसके लिए आपको उससे बात करनी है, उसकी उसकी दिन रात की रूटीन का पता करना है, एंड देन स्टार्ट द इंसुलिन अकॉर्डिंगली। सो फिर उसके बाद जब आप सबसे पहले व्हेन यू वांट टू स्टार्ट विद ऑन इंसुलिन, आपका पेशेंट पहले ट्रिपल रिजीम के ऊपर है तो स्टार्ट विद द बोलस एंड देन ऐड, अगर उससे कंट्रोल नहीं आ रहा तो मील टाइम ऐड करेंगे, एक मील टाइम ऐड कर लें। अगर उससे कंट्रोल नहीं आ रहा इंक्रीज दैट टू ट्वाइस बोलसेस ऐड कर दें, और फिर बेजल बोलस रिजीम के ऊपर जा सकते हैं। इवन प्री मिक्सेस एट दैट पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है इंसुलिन स्टार्ट करने के लिए, दैट इज़ टू एड्रेस द पेशेंट्स कि वो हाइपोग्लाइसीमिया को के फियर को आप उसके एड्रेस करें। सबसे ज़्यादा जो इंसुलिन का आपको स्टार्ट करने के हिंड्रेंस आएगी दैट इज़ द हाइपोग्लाइसीमिया फियर। And the key is to regular seeing the patient, adjusting the insulins according to the BSR charting, और जिसके लिए घर पे शुगर का चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ दी गाइडलाइंस जो कि आप देख सकते हैं, टेम्पलेट फॉर्म पे आपको अवेलेबल हो जाएगी PDF उसके अंदर। बट दिस इज़ जस्ट
टेम्पलेट जिसको आप अपने पेशेंट की नीड्स के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं. हर्डल्स क्या हैं इंसुलिन मैनेजमेंट के लिए? सो दिस इज़ लाइक अगर आप इस तस्वीर को देखें, इसमें आपको क्या नज़र आता है? ट्रैकिंग कर रहे हैं, एक रस्सी बंधी हुई है इन सब से. जो जो लीड कर रहा है उसके साथ जो रस्सी है वो पीछे तक हर एक उस रस्सी को पकड़ के चल रहा है. इफ दैट गाय स्लिप्स which is in the, who is in the red jacket, what do you think will happen? क्या होगा? सब गिर जाएंगे. So that is how your perception of insulin reflects onto the patients. If you are confident for your prescription, your patient is gonna follow. So these are the usual myths which we see in the clinics. I hope कि आप भी देखते होंगे. सबसे कहते हैं कि इंसुलिन जो है वो last resort treatment है. How do you tackle that? सबसे आखिरी ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब. इसके बाद अगर आप ये लगा देंगे तो फिर तो कुछ और रह नहीं जाएगा. Is it true? No. So इंसुलिन आखिरी ट्रीटमेंट क्यों बनती है? ज़्यादातर पेशेंट आपके पास किडनी फेलियर के साथ क्यों पहुंच जाते हैं? किडनी फेलियर कब होता है टाइप 2 के अंदर? जब कंट्रोल नहीं आएगा, राइट? सो इफ़ यू स्टार्ट इंसुलिन ऑन टाइम तो शायद कॉम्प्लिकेशंस आए ना. और अगर शुगर अच्छी कंट्रोल हो जाए तो प्रॉब्ली गुर्दे भी बच जाएं, आंखें भी बच जाएं. सो लास्ट रिजॉर्ट शायद ना हो अगर टाइमली स्टार्ट हो जाए. इंसुलिन लगाएंगे तो बस उसके बाद मैंने मर जाना है या मेरे गुर्दे फेल हो जाने हैं. कभी सुना आपने ऐसे? पेशेंट्स कहते हैं, अक्सर कहते हैं. सो ये अक्सर पेशेंट का जो पास एक्सपीरियंस है वो बता रहा होता है. कोई ना कोई ऐसे आया, लेट प्रेजेंटेशन हुई या हॉस्पिटल में जाके इंसुलिन लगानी पड़ी जिस टाइम पे सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट हो रही है. और क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर शायद बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली हम उसको रिवर्ट ना कर सकें बहुत सारी उसकी कॉम्प्लिकेशंस को. वंस किडनी इज़ गॉन, हम उसको कुछ नहीं कर सकेंगे. ठीक है. So what is, how do you tackle the myth regarding insulin causes weight gain? Does insulin causes weight gain? Anyone? Yes? So how do you, patient कहते हैं मैं तो वज़न बढ़ जाएगा, मैं नहीं लेना चाहता, so और उसको ज़रूरत है इंसुलिन की. What do you do then? So for the sake of time, I'll just talk about how to tackle that weight gain. So weight gain basically इंसुलिन में आता ही क्यों है? वो आता इसलिए कि जैसे ही आप इंसुलिन देते हैं पेशेंट को, उसका ग्लाइकोज यूरिया इम्प्रूव कर जाता है क्योंकि शुगर कंट्रोल हो जाती है. जैसे ही ग्लाइकोज यूरिया इम्प्रूव करता है, जो कैलोरी वो लूज़ कर रहा था वो भी गेन करना शुरू कर देता है. सेकेंड रीज़न, इंसुलिन का एनाबॉलिक इफेक्ट है ऑन द बॉडी. सो इंसुलिन कैन पोटेंशली कॉज वेट गेन. एंड प्लस जो सबसे ज़्यादा इस रीजन के अंदर है वो इज़ फियर ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. जैसे इंसुलिन लगाते हैं हम मरीज़ को, वो कहते हैं तो मेरी शुगर लो हो जानी है, ही कीप्स ऑन ईटिंग फॉर द फियर ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. सो इसके सोल्यूशन सिंपल है कि आप वो रिजीम सेलेक्ट करें पेशेंट के लिए, ओवरडू ना करें, अंडर डोजिंग कर लें इंसुलिन की, लेकिन कभी ज़्यादा ना लगाएं कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए. अगर उसको पहली दफ़ा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया इंसुलिन की पहली शॉट से, उसके बाद नहीं वो इंसुलिन लगाएगा कभी भी. So number one. So number two, always try to combine the type 2 diabetics wherever possible with an oral agent जो कि weight losing हो. For example, an SGLT, for example, metformin, right? So it can give a weight balancing effect, और जो आपका fear है of weight gain, it can be addressed. Number three is do address the hypoglycemia fear.
उसको आप पहले से बताएं कि ये जो regime मैंने बेजल आपके लिए सेलेक्ट की है, it will not potentially cause hypoglycemia, so relax. And please reinforce the dietary control. ज़्यादा खाने कार्ब को कंट्रोल करें, खाना वक्त पे खाएं, उससे ज़्यादा न खाएं, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें. So this is the message of the day. So in the country where we are living with the constraints and with the perception कि insulin बहुत महंगी है, probably we have a solution. Is the only solution we do have in hand is the biosimilar ones, and plus the last take-home message would be insulin is not to be feared. Too. जो चीज़ हमें जिससे डरना चाहिए वो इन शुगर की कॉम्प्लिकेशंस हैं विच कैन पोटेंशियली लीड टू किडनी फेलियर, जो कि लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे पेशेंट को डाल देगा, लॉस ऑफ विजन जो लाइफ लॉन्ग अंधा कर देगा, या फिर हार्ट डिजीज़ और इवन सर्टन कार्डिक डेथ्स, फालिज हो जाना, बिस्तर पे पड़ जाना. So the message is to start the drugs on time, whichever is necessary, intensify your treatments, कि आप अपनी शुगर को, पेशेंट की शुगर को बेहतर तौर पे उसी वक्त इंटेंसिवली मैनेज कर सकें without causing the hypoglycemia. And to do so, you have to know your tools. जो आपके घर के, जो आपके पास आपके टूल्स हैं, ये जो ड्रग्स हैं ये आपकी टूल्स हैं. दे आर जस्ट लाइक दी वो पेचकस का सेट जो आप घर में यूज़ करते हैं. इट हैज़ मल्टीपल फेसेस, राइट? सो एक पेंच को खोलने के लिए एक खास सेट चाहिए. सो ड्रग्स आर लाइक दिस. यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सी कहाँ पे यूज़ होनी है, और ये फिगर आउट करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ड्रग क्या करती है. थैंक यू वेरी मच.